Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. In the previous chapter we have seen about 10th place, ones place, tens place and how to write the decimal point. So now next we are going to see this is the 10th place. Ones place, tenths place, hundreds means when you if someone said that ones place means it is multiplied by 1, tens multiply by 10, hundreds place multiply by 100. Now after this, on the right hand of the ones place there is a 10th place, means it is the whole number. This is a whole number, starts from ones, tens, hundreds. Okay, so when you write the whole number, the decimal point is after the ones place, and then after that whatever the number is given is the fractional number, that is after the decimal point. Right on the right hand side the number then is a fractional number, that is 1 upon 10, that is 10th place. Okay, after that 1/10 there is a 100th place that we are going to see now. So this is about the 100th place. Okay, so some boxes are given, it is of 100 boxes. Okay, this figure is given which has 100 boxes. How many are shaded? Can you see this? Only 2 are shaded. Okay, so 2 are shaded. How will you write this? Shaded portion divided by total squares, that is 2 divided by 100. Okay, next the color is not given properly. These 8 squares which are colored, these are shaded portion is whole. This is whole. 1 2 3 4 4 2s are 8 8 squares which are colored. So 8 divided by 100. Okay, so this is the 100th place. 100th place के ऊपर जो नंबर है वो है 8. Okay, so from decimal point your 100th place will be that is second place is 100. Okay, now in this boxes also there are 100 boxes, and how many shaded are there? These are 15 shaded. Okay, these are 15 shaded. So shaded portion divided by total number of boxes. So shaded portion is 15 divided by total number is 100. So 15 divided by 100. How to write this number in the decimal point? 0.15. Okay, 0.15 because 1 in the number 15, 1 in on the 10th place and 5 is on the 100th. Here 8 upon 100. 8 upon 100 means how to write this 8 upon 100? 0.08 is the decimal point. See here, you can see 0.08, 8 upon 100. Okay, that also I have explained you that 8 के पीछे हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, तो डिवाइड बाय 100 यानी डेसिमल पॉइंट हमें लेफ्ट में जाना है. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट हमारा आगे जाते हैं. जब डिवाइड करते हैं हम नंबर से तो 100 में 2 ज़ीरो है, इसीलिए हम लेफ्ट में 2 घर जाएंगे. तो यहाँ पे एक घर फिर दूसरा घर, तो दूसरे घर में कुछ नहीं यानी 0 है, तो 0.08 इज़ द आंसर. सो 0.08 लिखने के बजाय 0.08 लिखते हैं क्योंकि दिस 0 इज़ अ होल नंबर. 0.08 मीन्स 8 अपॉन 100. और नेक्स्ट सेम लाइक 15 अपॉन 100. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, 5 के पीछे गया और वापस 1 के पीछे आया यानी 0.15 इज़ द आंसर. So 0.15. Now 50 squares. How will you write this? 50 upon 100, that is 0.50. 92 squares, that is 92 divided by 100, 0.92. So have you understood how to write the decimal point for the 100th place? Here one example is also given. If you want to write this in the decimal point, if it is given in the tabular form, दैट इज़ वंस प्लेस में 2 है, 10th प्लेस में 4 है और 100th प्लेस में 3 है, देन हाउ विल यू राइट? पॉइंट कहाँ पे आएगा? वंस प्लेस के बाद पॉइंट आता है, इसीलिए वंस प्लेस पहले आएगा. 2.43. ये 43 पढ़ना नहीं है, 43 पढ़ना है. आफ्टर डेसिमल पॉइंट you have to read the number as a single digit number. Okay, so 2.43 is your answer. ऐसे ही आपको सब करना है. Here see, here they have given
ones place, tens place, hundreds place, tenth place, 100 place. Now how will you read this number? ones place के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और इसके ये जो नंबर है वो हम कैसे पढ़ते हैं? नॉर्मल नंबर पढ़ना है 132 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, सो 132.15. ओके, 132.15. दिस इज योर आंसर. दैट इज 2 plus 1/10 plus 5/100. So this will be as 132.15. तो ये आपको एक्सपांशन फॉर्म है ये हमारा. Okay. ऐसे ही सब एग्जाम्पल्स दिए हैं दैट वी हैव टू सी एंड वी हैव टू solve the 8.2 exercise. Here also 243.25. ओके, तो ये एक्सपेंशन फॉर्म क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10. उसका ही मतलब है 2/10. नेक्स्ट जो है वो 5. ओके, सो दिस इज द हाउ वी हैव टू राइट डाउन. Now next is write as a decimal. Write as a decimal. 4/5 आपको डेसिमल में करना है. तो 4/5 को आपको क्या करना है? उसका मल्टीप्लिकेटिव जो फॉर्म है वो आपको क्या करना है? मल्टीपल में लिखना है 10 के. यहाँ पे हमारा 5 नंबर है तो 5 के टेबल में 10 आता है या 100, 1000. तो आपको जो नंबर डिनोमिनेटर में लाना है वो है 10, 100 या 1000. तो उसमें से आपको चूज़ करना है. तो 4/5 है तो 5 के टेबल में 10 आता है. 5 2s are 10. दैट्स वाई वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय 2. दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2. देन 4 2s are 8, 5 2s are 10. दैट इज 8/10. ये हमारा नंबर आ गया. अभी हम उसे 8/10 को ईजिली डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं. ये हमें डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखने आएगा 4/5 का. कब आएगा? जब उसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी टेंस के मल्टीपल में होगा तो ही वो आएगा. इसीलिए हमने पहले उसको चेंज करवा लिया. सो इसका आ गया 10. उसको डेसिमल में कैसे लिखना है? 0.8. नेक्स्ट 4 के टेबल में 10 नहीं आता है लेकिन 100 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 100. बराबर है. 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 100. सो दोनों नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो दिस आंसर इज 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 75 and 25 multiplied by 4 is 100. So 75 divided by 100. So the डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखना है? 0.75. तो ये आपको मालूम है 3/4 जो मैंने पहले भी सिखाया था. हाफ यानी 0.50. ये याद रखो. 1/2 यानी 0.50. 3/4 यानी 0.75 एंड 1/4 आ गया तो 0.25 आता है. यह हमेशा याद रखना है. ओके, नेक्स्ट जो है वो 7/1000 दिया है. तो यहाँ पे 1000 ऑलरेडी लिखा है तो हमें ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 1000 है ही. तो इसमें ज़ीरो कितने? 3. जब 3 0 होते हैं तो डेसिमल पॉइंट हमारा 7 के पहले है. तो 7 के पहले से हमें लेफ्ट में आना है. सो 1 2 और 3 3 घर है तो यहाँ पे पीछे कितने ज़ीरो लगेंगे? 2 0. सो 0.007 यह आंसर आएगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट दिस? सी हियर दे हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व everything. See here also 7/1000 0.07. ओके, यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म. उसको आपको लोएस्ट टर्म में लिखना है. तो लोएस्ट टर्म यानी क्या? 0.04. इसका ही मतलब है 4/100. लोएस्ट टर्म यानी आपको डिवाइड करके उसको लोएस्ट टर्म में लाना है. तो आप वो कैसे लाओगे? 4/100 दोनों भी कौन से टेबल में है? 4 के टेबल में दोनों है. 4 के टेबल में 4 भी आता है और 100 भी आता है. सो 4 1s are 4 and 4 25s are 4.25. दिस इज द लोएस्ट फॉर्म. नेक्स्ट 2.34. 2.4 में 2 जो होता है वो होल नंबर होता है और 0.34 जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है. तो इसको हम कैसे करेंगे? जो होल नंबर है वो 2 प्लस 34 हम डेसिमल इसमें लिख लेंगे. फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखना है डेसिमल? 34/100. जब 0.34 है तो पॉइंट के आगे कितने घर है? 2. इसीलिए नीचे 2 0 आ गए. ये याद रखो. ये दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड टू अंडरस्टैंड. 0.34
ये फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 34 लिखना है डिवाइड बाय 1 के आगे कितने ज़ीरो देखोगे, पॉइंट के आगे कितने नंबर आए हैं 2, इसीलिए 2 ज़ीरो लगे। ओके, इज इक्वल टू 2 प्लस, अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, 34 इसको मिनिमाइज करना है, तो 34 और 100 दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, इसीलिए 2 से डिवाइड किया जो कि आ गया 17/50। सो 2 17/50 इज योर आंसर। नेक्स्ट 0.342, अभी पॉइंट के आगे कितने घर है, ए, यानी जो भी नंबर दिया है वो पूरा लिखना है, उसके नीचे 1 के आगे 3 ज़ीरो ऐड करने। ओके, दिस दैट लाइक दिस इज 342 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 342,000, दोनों भी 2 के टेबल में सेम आएगा, 2 से डिवाइड करना है, दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 171 डिवाइड बाय 500। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अभी यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, उसको आपको डेसिमल में लिखना है। सो 200 + 30 + 5, तो ये जो है ये यूनिट वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 235.29 100th है। ओके, सो दिस इज रिटन एज 235.29। ओके, उसके बाद है 50, तो 50 ये टेंस प्लेस है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 50.16, ऊपर वाले नंबर लिखने हैं, ये नीचे सिर्फ आपको 10th या 100th है ये चेक करना है, 10 के आगे 100, अगर डायरेक्ट 100 दिया होगा तो आप क्या लिखोगे, 0.06 लिखना है, क्योंकि 10th प्लेस अभी बाकी है, इसीलिए अगर 10th नहीं दिया होगा और सिर्फ 6/100 दिया होगा तो आंसर होगा 50.06, लेकिन यहाँ पे 10th प्लेस है, इसीलिए 50.16 इज योर आंसर। उसके बाद 16 + 3/10 + 5/1000, सॉरी 16 नंबर लिखा ही है तो वो डायरेक्टली लिखना है। उसके बाद ये फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं, सो 16.35, लेकिन ये 5 होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये 1000th प्लेस है, इसलिए 305, 16.305। सी हियर 100 प्लेस मिसिंग है, इसीलिए पहले लिख के लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। 306 एंड 700th, ये आपको कैसे लिखना है, नंबर में कैसे लिखोगे आप, 306 कैसे लिखना है, 306.700th, यानी 7/100 है, दैट इज 0.07 आएगा। ओके, बिकॉज दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, 7 इज ऑन 100 प्लेस, तो 10th प्लेस जो है वो एम्प्टी है, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा। नेक्स्ट है 11.235, वो डायरेक्टली लिखना है 11.235। ओके, तो ऐसे ही आपको सब नेम लिखने हैं। 9 and 25,000, यानी 9 कैसे लिखना है, 9.25,000 यानी 25 डिवाइड बाय 1000 है, तो इसका डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, 25 डिवाइड बाय 1000 का आंसर कैसे आएगा, 0. यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे डेसिमल होता है, 3 घर हमें लेफ्ट में जाना है, 1 2 and 3, यहाँ पे आएगा डेसिमल, यहाँ पे ब्लैंक है इसलिए 0.025। ओके, सो 0.025, यानी यहाँ पे क्या है, 9 पॉइंट है, तो 9.025 ये हो गया आंसर। ओके, 9.025। 306, यही जो मैंने अभी बताया था वही उन्होंने लिख के दिया है, वो कैसे लिखना है वो आपको देखो, 306 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10, बिकॉज 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल टू 306.707। लाइक दिस यू हैव टू राइट। एक्सरसाइज जो है 2, इसी हिसाब से सॉल्व करना है आपको, मैं आपको फोटो भेजती हूँ, वैसे ही सॉल्व करना है। ओके।